حضرت ابن العربی کون تھے؟ دوستو، آج ہم جانیں گے ارطغرل غازی میں دکھائے گئے مشہور کردار حضرت ابن العربی کے بارے میں۔ آپ کو پتہ ہوگا انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر، سب جگہ ایک سیریل جس کا نام ارطغرل غازی ہے، یہ سیریل تیزی کے ساتھ پوری دنیا دیکھا اور پسند کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ ارطغرل غازی کے پیر و مرشد تھے۔ دوستو، آپ نے حضرت ابن العربی کا کردار اس ڈرامے میں دیکھا ہوگا۔ ویسے تو ارطغرل غازی ڈرامے میں بہت سے اہم کردار ہیں، لیکن آج ہم حضرت ابن العربی کے رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام شیخ اکبر محی الدین ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کی پیدائش 560 ہجری 17 رمضان پیر کے دن اسپین کے ایک شہر جس کا نام مرسیا تھا وہاں پر ہوئی۔ آپ جب 8 سال کے ہوئے تو علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو اشبیلیہ بھیجا گیا، جہاں آپ نے حدیث شریف اور دینی تعلیم حاصل کی۔ حضرت ابن عربی کا اصلی نام محمد تھا۔ آپ کا نسب حاتم طائی سے ملتا ہے۔ آپ کے والد کا اسم گرامی حضرت علی بن محمد الحاتمی تھا۔ حضرت ابن العربی ایک نیک بزرگ تھے۔ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ کے والد محترم حضرت علی بن محمد عبداللہ کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت سید غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مرید تھے۔ وہ سیدنا غوث پاک کی بارگاہ میں ہمیشہ جاتے اور ان سے اپنے حال بیان کرتے۔ ایک دن حضرت علی بن محمد عبداللہ نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضور، آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے ایک اولاد عطا کر دے۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے عبداللہ، تمہارے نصیب میں اولاد نہیں ہے، تم اگر چاہو تو میری اولاد جو میرے شلب میں ہے اسے لے سکتے ہو۔ اس کے بعد حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن العربی کے والد کے پشت سے اپنی پشت مبارک کو لگا کر انہیں اپنے خاص انعام سے نوازا، اور اس کے 1 سال بعد حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ سبحان اللہ! حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اسپین کے شہر مرسیا میں پیر کے دن 17 رمضان 560 ہجری کو حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ کچھ وقت کے بعد ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے والد انہیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن العربی کو اپنی گود میں لیا اور انہیں اپنی فیض سے مالا مال کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ہی آپ کا نام رکھا تھا۔ اصل میں ابن العربی کہلانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی، جہاں آپ نے علم حاصل کیا وہاں عربی پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ حضرت ابن العربی علم کی بدولت ایک طبیب بھی تھے، ہر مرض کے بہترین علاج جانتے تھے۔ حضرت ابن العربی کے پاس اس وقت بڑے بڑے بادشاہ آتے تھے اور اپنی پریشانی بیان کرتے اور آپ انہیں اس پریشانی سے نجات بھی دلا دیتے۔ اللہ نے آپ کو وہ بلندی بخشی جس کی وجہ سے آپ اس وقت بہترین عالم اور حکیم تھے۔ کچھ وقت کے بعد آپ اس وقت کے سبھی بزرگ اور صوفیوں سے فیض حاصل کر چکے تھے۔ آپ اللہ کی یاد میں ہمیشہ مشغول رہنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے 38 سال کی عمر میں اشبیلیہ کو چھوڑ دیا اور اپنے مصر کی طرف اپنا سفر طے کیا۔ ابن العربی مصر آ کر اپنے علوم حاصل کیا۔ کچھ روایتوں کے مطابق مصر بغداد شام ہوتے ہوئے مکہ شریف پہنچے۔ مکہ مکرمہ میں آپ نے لمبے وقت تک قیام کیا اور وہاں اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور 608 ہجری میں آپ واپس بغداد آئے۔ اس طرح سے آپ ہمیشہ سفر کیا کرتے تھے۔ آپ سفر میں جہاں جاتے وہاں لوگوں کو نیکی کی راہ پر چلنے کی نصیحت کرتے اور انہیں صحیح راستہ دکھاتے۔ آپ کے پاس بڑی تعداد میں لوگ تعلیم حاصل کرنے آتے۔ حضرت ابن العربی خوش اخلاق بزرگ تھے۔ آپ کے پاس اس وقت بڑے بڑے صوفی اور اولیاء ادب اور علم حاصل کرنے آتے۔ حضرت ابن العربی کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ آپ عبادت، ریاضت اور زہد تقوی میں بے مثال شخصیت تھے۔ آپ ہمیشہ لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، انہیں ان کے اصل مقصد کی یاد دلاتے کہ اللہ نے تمہیں دنیا میں اپنی عبادت اور لوگوں کی بھلائی کے لیے بھیجا ہے۔ ان کی بارگاہ میں
जो भी जाता बुरे कामों से तौबा कर लेता। आपने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं। आपके अक़वाल और हिदायतें लोगों के लिए एक बेहतरीन तोहफा है जिससे वो अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकते हैं, क्योंकि आप शरीयत और तरीक़त और मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे। हज़रत इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह आपकी तस्वीर दुनिया की बहुत सी लाइब्रेरी में आज भी मौजूद है। हज़रत इब्न अरबी बड़े बड़े मसले को आसानी से हल कर देते थे। 627 हिजरी का वाक़या, हज़रत इब्न अरबी दमिश्क में थे। आपने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। अल्लाह के प्यारे नबी ने आपको बहुत सी खूबियों से नवाजा। आपके मुरीद जिनका नाम शेख सदरुद्दीन था, वो फरमाते हैं कि हमारे पीर इब्नुल अरबी अगर किसी का हाल मालूम करना चाहते तो उसकी तरफ से बस नज़र डालते और उसका पूरा हाल बयान कर देते। हज़रत इब्नुल अरबी और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्नुल अरबी की पैदाइश 560 हिजरी में हुई और हुजूर गौसे पाक की वफ़ात 561 हिजरी में हुई। इस बात से ये पता चलता है कि आप हुजूर गौसे पाक से मुरीद नहीं थे। आपका सिलसिला नसब दो तरफ से है, एक हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से और दूसरा हज़रत सैयदना अब्दुल फ़तेह मोहम्मद कासिम रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है। इसके अलावा सबसे दिलचस्प बात यह है कि हज़रत इब्नुल अरबी को खिरका हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से भी पहुँचा। इसकी कई रिवायतें मिलती हैं और कई मुलाकात आपकी खिज़र अलैहिस्सलाम से हुई। पहला खिरका आपको 601 हिजरी में हज़रत अबुल हसन बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक से हासिल हुआ। हज़रत अबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह को ये खिरका जिस तरह पहनाया गया था, आपने उसी तरह से हज़रत इब्नुल अरबी को ये खिरका मुबारक अता कर दिया। और दूसरा खिरका आपको हज़रत शेख तकीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से हासिल हुआ और इन्हें भी ये खिरका हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अता किया था। तीसरी और सबसे अहम वजह यह है कि आप पहले खिरके के कायल नहीं थे, हज़रत इब्नुल अरबी और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, लेकिन जब आपने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को मक्का शरीफ में दरवेशी की खिरका पोशी करते देखा तो उसी वक्त हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों से फिर खिरका अता फरमाया। इसके बाद हज़रत इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदों और खुलफा हज़रत को खिरका शरीफ अता करना शुरू कर दिया। इसके अलावा और कई रिवायतें और वाक़यात हैं जिनमें आप की और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात साबित होती है। हज़रत इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये बताना ज़रूरी है, हज़रत इब्नुल अरबी ख्वाबों की अहमियत पर ज़्यादा तवज्जो देते थे। आपके ख्वाब भी आम लोगों की तरह नहीं होते जिसमें सिर्फ दुनिया की मोहब्बत हो, बल्कि आपके ख्वाब अल्लाह और उसके रसूल की याद में होते हैं। हज़रत इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी ख्वाब में दुनियावी हालात भी मालूम कर लिया करते थे कि जिसकी मदद से आप लोगों की परेशानियों को दूर कर देते थे। सुभान अल्लाह, हज़रत इब्नुल अरबी ने सबसे अच्छा ख्वाब ये बताया जिसमें अल्लाह के प्यारे नबी ने आपको किताब लिखने की इजाज़त दी। एक बार हज़रत इब्नुल अरबी की हज़रत शहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई। दोनों हज़रात ने एक दूसरे को देखा लेकिन कुछ बातें नहीं की। इस मुलाकात के बारे में किसी ने हज़रत इब्नुल अरबी से पूछा कि हज़रत शहाबुद्दीन सोहरावर्दी के बारे में आप क्या राय रखते हैं। हज़रत इब्नुल अरबी ने कहा, शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ऐसे बुजुर्ग हैं जो सर से पांव तक सुन्नत नबी में मशहूर है। किसी ने शेख शहाबुद्दीन से इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि इब्नुल अरबी हकीकत में समुंदर हैं। हज़रत इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहद मोहब्बत थी। आप फरमाते हैं, ऐसी कोई हदीस नहीं बची जिसके बारे में मैंने अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर होकर ना पूछी हो। सुभान अल्लाह, इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़रत इब्नुल अरबी का कितना बुलंद मकाम और मर्तबा था। हज़रत इब्नुल अरबी ने फरमाया, मैं जो कुछ भी अपनी मजलिसों में बयान करता हूँ और जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ कुरान पाक से लिखा है, क्योंकि मुझे अल्लाह की तरफ से कुरान शरीफ के
खजाने की चाबी अता हुई है। जब बादशाह ने हजरत इब्नुल अरबी को सूली पर चढ़ाने का इरादा किया, इस तरह एक बार उस वक्त के बादशाह ने किसी के बहकावे में आकर इब्नुल अरबी को बुलवाया और कहा, तुम्हें सूली पर चढ़ाऊंगा, तुम्हें कत्ल करूंगा। ये बात सुनकर हजरत इब्नुल अरबी मुस्कुराए और फरमाने लगे, ये सर सूली पर नहीं चढ़ाया जा सकता। आपने फरमाया, अगर तुम मेरा सर काटोगे तो इस शहर में सभी के सर कटे हुए मिलेंगे। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरी एक उंगली की नाखून काट कर तो देखो। जब बादशाह ने आपकी नाखून काटी तो शहर के सभी लोगों की नाखून कटी हुई मिली। वो बादशाह डर गया और फौरन उनसे माफ़ी मांग ली। अल्लाह अकबर। दोस्तों, इसी तरह आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी करामातें दिखाई हैं और लोगों को गुमराही से बचाकर सही रास्ता दिखाया है। जो कोई भी अपनी ज़िंदगी अल्लाह की राह में डाल देता है, अल्लाह उसे इसी तरह से बुलंदी बख्शता है और उन्हें दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना देता है। अल्लाह वालों की यही शान होती है कि वो अल्लाह की दी हुई ताकत से लोगों को सही रास्ता दिखाया करते हैं। दोस्तों, इस वक्त जो ड्रामा पूरी दुनिया पसंद किया जा रहा है, जिसका नाम इर्तुगरुल गाजी है, जिसमें हज़रत इब्नुल अरबी का किरदार दिखाया गया है, जिसे देखकर कुछ लोगों ने इस किरदार के बारे में अपनी अलग अलग राय देना शुरू कर दी, लेकिन उन लोगों को हज़रत इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह की हिकायत या उनकी किताबें नहीं पढ़ी। आप एक सूफी थे, उस वक्त के कई बड़े बड़े सूफी दरवेशों ने आपसे तालीम हासिल किया है। आपके फैज से लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदली है। हज़रत इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह उसके बाद वापस दमिश्क पहुँचे और लोगों को तालीम देते आप दमिश्क में ही विसाल फरमा गए। 23 रबीउल अव्वल आखिर 638 हिजरी जुम्मा के रात को आपने विसाल फरमाया। आपका मजार शरीफ के बारे में बताया जाता है कि मजार को कई साल तक आम लोगों से छुपा दिया गया था, क्योंकि कुछ लोग हज़रत इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह के दुश्मन बन गए थे। सिर्फ खास लोग जो आपके साथ रहा करते थे उन्हें ही मजार शरीफ का पता मालूम था। फिर कई साल बाद सुल्तान सलीम मालिक ने आपका मजार खूबसूरत तरीके से तामीर करवाया। आपका मजार दमिश्क के एक पहाड़ पर है। दोस्तों, हज़रत इब्नुल अरबी की हिस्ट्री आपको अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। इल्म के फूल। अस्सलाम वालेकुम।